پارک سرکس میں پرمود دا کے گھر پر بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں کا مجمع تھا۔ کلکتہ یونیورسٹی کے طالب علم، ایپٹا کے کارکن، پارٹی کے افراد، لکھنؤ والے بھی سب پہنچ چکے تھے۔ پرمود دا کلکتہ کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے۔ اس وقت ان کے مکان کے بڑے ہال میں بڑی سخت گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ ریلیف ورک کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے جو پروگرام اسٹیج کیا جانے والا تھا اس کی ریہرسل جاری تھی۔ کونے میں ہارمونیم رکھا تھا۔ ایک طرف دو لڑکیاں ٹیگور کی چترنگدا کے گانوں کی مشق کر رہی تھیں۔ ہال کے سرے پر شیشوں والا برآمدہ تھا، اس میں پرمود دا کی بہن کا اسٹوڈیو تھا جو شانتی نکیتن کی آرٹسٹ تھیں۔ اسٹوڈیو میں ایک لڑکا سفید شال اوڑھے ایزل کے سامنے کھڑا ایک پورٹریٹ پر آخری ٹچ لگا رہا تھا۔ ڈرامے کے بعد یہ تصویر بھی ریلیف فنڈ کے لیے نیلام کی جانے والی تھی۔ پرمود دا کی بہن ارونا دیدی ایک اور کینوس پر جھکی ہوئی تھی۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ برش صاف کر کے ایک طرف کو رکھنے کے بعد ماتھے پر سے بال ہٹاتا ہوا یہ مصور لڑکا ہال کے دروازے میں آ کھڑا ہوا اور ہال کے منظر پر نگاہ ڈالی۔ ان سب کو اس تندہی سے کام میں جٹے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دادا ادھر آؤ، ایک لڑکی نے اسے آواز دی۔ دیکھو اب میرے قدم ٹھیک ہے نا؟ تمہارے قدم تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اس نے لڑکی کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تم بنگالیوں کی رومان پرستی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، تم خالص کلاسیکلی ڈانس کی آخر کیوں اہل نہیں؟ دادا یہ تو خالص بھرت ناٹیم کر رہی ہوں۔ وہ اسے اداسی سے کھڑا دیکھتا رہا۔ یہ لڑکا بھی یو پی کا رئیس زادہ تھا۔ فی الحال وشوا بھارتی آیا ہوا تھا، ایم اے اور لاء الہ آباد سے کر چکا تھا۔ ابھی اس کے دماغ میں واضح طور پر نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہت سے پروگرام تھے، جرنلزم، سیاست، کتابیں لکھا کروں گا نہایت عالمانہ، ایسی تھیوریز پیش کروں گا کہ دنیا اش اش کر اٹھے گی، آرٹ کا نقاد بنوں گا۔ سیاسی طور پر آپ بہت سخت اشتراکی واقع ہوئے تھے۔ باپ کا کہنا تھا، اور سارے باپوں کی طرح، کہ آئی سی ایس میں بیٹھو۔ وہ خود حکومت برطانیہ کے نائٹ تھے اور بڑی چوٹی کے بیرسٹر۔ بچپن میں اسے نینی تال پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، پھر یونیورسٹی کی تعلیم ختم کرنے اور ادھر ادھر مارے پھرنے کے بعد اس کے جی میں آئی کہ شانتی نکیتن چلو۔ اس نے باپ سے تجویز پیش کی، ہمیں وشوا بھارتی بھیج دیجیے۔ باپ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں میاں صاحبزادے، آرٹسٹ بنو گے؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ دنیا کے سارے باپ یہی بات کہتے ہیں، مگر چونکہ اکلوتا لڑکا تھا اس لیے باپ نے ضد پوری کر دی۔ اب وہ 2 سال سے بالیوڈ میں تھا اور وشوا بھارتی کے دوسرے طالب علموں کے ہمراہ ریلیف کے کام کے سلسلے میں کلکتہ آیا ہوا تھا۔ یہ لکھنؤ سے لوگ آئے ہیں، ان سے نہیں ملے؟ کسی نے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ ہال عبور کر کے اس کونے کی طرف چلا جدھر کمال دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا زور زور سے پالکی چلے ہو گا رہا تھا۔ یہ بھی ڈرامے کی ریہرسل کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا لڑکا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور گانا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چاروں طرف زور زور سے بنگالی بولی جا رہی تھی۔ کمال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نمشکار۔ کمال نے گانا ختم کرنے کے بعد ہارمونیم بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ آداب عرض، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ کمال کی جان میں جان آئی۔ بنگالی بولتے بولتے اس کی حالت تباہ ہو چکی تھی۔ گوتم نیلمبر، لڑکے نے اپنا تعارف کرایا۔ کمال رضا، اسے اطلاع ملی۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ دونوں کا ایک ہی حلیہ تھا، تنگ پائجامہ کرتا، نہرو واسکٹ، اوپر سے کشمیری شال۔ یہ حلیہ اس گروہ کے تقریباً سبھی نوجوانوں کا تھا۔ میاں کہاں آپ پھنسے؟ ان بنگالیوں نے تو بنگالی بول بول کر ناطقہ بند کر رکھا ہے، آؤ باہر چلیں۔ دونوں نے باہر ایک ریستوراں میں جا کر قہوہ پیا اور پھر واپس آ گئے۔ آؤ تم کو اپنی تصویر دکھاؤں، گوتم نے ارونا دی کے نگار خانے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یار تم ہری شنکر سے نہیں ملے؟ کمال نے کہا۔ ہری شنکر کون ہے؟ گوتم نے بے خیالی سے پوچھا اور بڑے آرٹسٹوں والے انداز میں سگریٹ ہونٹ میں دبا کر تصویر مکمل کرتا رہا۔ ہری شنکر یار ہے میرا، بڑا باغ و بہار آدمی ہے۔ کہاں ہے بلاؤ؟ گوتم نے نوابوں کی طرح کہا۔ گھاس کھا گئے وہ یہاں نہیں ہے، لکھنؤ میں ہے، بیمار پڑا ہے بیچارہ۔ تم سب لکھنؤ میں کیوں رہتے ہو؟
गौतम ने ब्रश एक तरफ रखकर मुड़ते हुए पूछा। और फिर कहाँ रहे? हाँ, ये भी ठीक कहते हो। तुमने इसकी नाक गलत बनाई है। होठ बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। माशाल्लाह, क्या जवाब दिया है। मारू घुटना फूटे आंख। सिगरेट लो। क्या तुम आर्टिस्ट हो? और क्या तुम्हें ग्रास कट नजर आता हूँ? अरे रे, तुम्हारा जिक्र जीजा जी ने किया है खत में? जीजा जी? वो कौन बुजुर्ग है? हमारी लाज के मियाँ। तुम्हारी लाज कौन है? हद है जीजा जी, तुमको तो जानते हैं, मुझको बहुत से लोग जानते हैं। मुगालता फाइट भी हो? हाँ, तुम नहीं हो? वो तो सही। ठीक है, गौतम तस्वीर में लगा रहा। अगर रह लिए शांति निकेतन में 4-5 साल तो शायद लुट पिट कर आर्टिस्ट बन जाओ। फिलहाल तो उसकी कोई उम्मीद नहीं है। कमाल ने तस्वीर को गौर से देखते हुए इजहार ख्याल किया। खाली आर्टिस्ट? अरे मेरा इरादा तो है कि मद्रास जाकर राम गोपाल से भरतनाट्यम भी सीखूंगा, गौतम ने अल्टीमेटम दिया। ये इरादा तो एक ज़माने में इस खाकसार का भी था, मगर जब मैंने इसका इजहार किया तो मेरी बहनें हंसते हंसते लौट गईं और उन्होंने बेइंतहा मेरी हूटिंग की। असल में लड़कियां बेहद बोगस होती हैं, आर्ट को समझने की उनमें सलाहियत नहीं। तुम्हारी बहनें भी हैं? हाँ, तुम्हारी नहीं है ना? ये बड़े अफसोस की बात है। बहनें हों तो ज़िंदगी में बड़े सुकून और नरमी का एहसास रहता है। फिर क्या हुआ? क्या? तुम कह रहे थे कि यार गौतम को तुमको तो मालूम है, बुद्धिस्ट भी हो गया था एक ज़माने में। वाकई? चंद साल गुजरे, मैं सारनाथ गया तो वहाँ मुझे बड़ा सख्त सुकून मिला। तो मैंने सोचा कि यार ये बुद्धिज़्म में कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तुम पार्टी में हो? पार्टी? नहीं, अभी मैं इस काबिल नहीं बना। उसके लिए बड़ा पित्ता मारने की ज़रूरत है। हाँ, ठीक कहते हो। वैसे तुम कोई ऐसे रिवोल्यूशनरी दिखाई भी नहीं पड़ते, कमाल ने कहा। गौतम ने गुस्से से उसे देखा। मालूम है महात्मा गांधी ने तुम्हारे गुरुदेव से क्या कहा था? कि घर में आग लगी है और आप बैठे चिड़ियों का गाना सुनते हैं, कमाल ने कहा। गौतम ने ब्रश झटक कर रखा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो जी। क्या तुम्हारे हरिशंकर में भी तुम्हारा ही जितना बचपना है? तुम भैया साहब से भी मिलना, कमाल ने उसकी बात की सुनी अनसुनी करके कहा। वो कौन है? मेरे चचाजाद भाई। वो भी बहुत काबिल हैं। हाँ, मगर आजकल महाज पर गए हुए हैं। लखनऊ में बड़ा बड़ा अहले कमाल पड़ा हुआ है, इसका मतलब है। और क्या, चलो फरपू चलकर चाय पिए। गौतम ने उठकर तस्वीर पर कपड़ा डालते हुए कहा। फरपू, तुम सख्त बुर्जुआ मालूम होते हो। बको मत। अच्छा, एक बात बताओ। मैं हर बात के मुतालिक बहुत वाज़ेह तसव्वुरात रखने का कायल हूँ, कमाल ने कहा। शो, क्लास के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम प्रोलेटारिया के मुस्तकबिल में यकीन रखते हो? हाँ। हाथ मिलाओ। उन्होंने हाथ मिलाया। तुम समझते हो फ्यूडल समाज अपनी मौत आप मर जाएगा? हाँ। उन्होंने दोबारा हाथ मिलाया। तुमको विश्वास है कि तुमको फ्यूडल समाज से सच्ची दिली नफरत है और तुम उसकी उसकी बेखुनी करके ही दम लोगे? मुझे तो खैर विश्वास है, लेकिन तुम तो खुद फ्यूडल समाज से ताल्लुक़ रखते हो। तुमको कैसे मालूम? कमाल ने घबरा कर पूछा, गोया उसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई। मुझे इस तरह मालूम हुआ कि अभी अभी हॉल में कोई जिक्र कर रहा था कि तुम्हारी मटिया बुर्ज वालों से रिश्तेदारी है और तुम चैतपुर रोड वाले नवाब साहब। हाँ हाँ, खैर, कमाल शर्म से पानी पानी हो गया। वो तो जो हुआ सो हुआ, तारीख पर मेरा क्या बस है। मगर अब मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ कि खुद को मुकम्मल तौर पर डी क्लास कर लूँ। तुम्हारा हरिशंकर भी फ्यूडल है तो सही, मगर वो बेचारा भी क्या कर सकता है। खूब, गौतम मुस्कुराया। मैं बड़ा सख्त मिडिल क्लास हूँ, उसने इतला दी। रंज न करो, कमाल ने उसे दिलासा दिया। हम लोग तो दरअसल इस नए समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जो अब जन्म ले रहा है, जनता का समाज। इस तरह की खालिस तालिब इल्माना गुफ्तगू के बाद दोनों बाहर आए। कमाल पर गौतम का रौब पड़ गया। गौतम में बड़ी गहराई थी और वो बहुत ज़्यादा समझदार था। बहरहाल सीनियर लड़का था और कमाल अभी मुतासिर होने वाली स्टेज से नहीं निकला था।
लखनऊ वापस पहुंचकर कमाल ने जीजा जी को जो खत लिखा उसमें गौतम ने लंबर की तारीफों के दरिया बहा दिए। उसी साल गर्मियों में गौतम लखनऊ आया। अपनी जाए क़याम से उसने गुलफिशा फ़ोन किया। वहाँ मालूम हुआ कि सब लोग रेडियो स्टेशन गए हुए हैं। रेडियो स्टेशन से इत्तला मिली कि अभी अभी सब लोग कमला जसपाल के यहाँ फैज़ाबाद रोड गए हैं। फैज़ाबाद रोड से पता चला कि वो सब तो सिंघाड़े वाली कोठी चले गए। सिंघाड़े वाली कोठी, क्या बेतुका नाम है। अब मकानों के ऐसे नाम होने लगे जैसे खरबूजे वाली हवेली, तरबूजे वाला किला या गाजर मंजिल और मूली हाउस। उसे बेहद हंसी आई। शायद ये लोग सिंघाड़े बहुत खाते होंगे या क्या होता होगा। उसने सिंघाड़े वाली कोठी फ़ोन किया तो वहाँ चंपा ने रिसीवर उठाया। हेलो, चंपा ने कहा। हेलो, आदाब अर्ज़। देखिए, मेरा नाम गौतम है, गौतम नेलंबर। अगर आप लोग अभी वहाँ से कहीं और तशरीफ़ न ले जाते हो तो मैं हाजिर हूँ। आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, चंपा ने जवाब दिया। और अगर आप सोशलिस्ट हैं तो ज़रा तैयार होकर आइएगा। आज हम सब तुले बैठे हैं कि कोई सोशलिस्ट मिले और उसे कच्चा चबा जाए। गौतम ने उस रोज़ का अखबार अभी तक नहीं पढ़ा था, मगर उसने फ़ौरन जवाब दिया, बहुत खूब, हाजिर होता हूँ। आप लोग भी तैयार रहिएगा। सिंघाड़े वाली कोठी में जब वो सब लोग जाकर नदी के रुख बरामदे में बैठ गए तो गौतम ने सवाल किया, तिलत आरा बेगम, आप सब में से कौन सी खातून है? जी मैं हूँ, फरमाइए। देखिए मिस साहिबा, कोई लिखने बैठ जाए तो उसका कलम थोड़ा ही पकड़ा जा सकता है, मगर ये कि आप अगर ऐसा ना करती तो कितना अच्छा होता। आपने इप्टा की तरफ से जिस कदर बोगस ड्रामे कलकत्ते में प्रोड्यूस किए, उनका अहवाल मैं भी कमाल की ज़ुबानी सुन चुकी हूँ। मैं आपको मार्जिन देती हूँ कि 15 मिनट तक हम सब पर अपना रौब डालिए। इतना ही वक्फ़ा हम आपको मरूब करने में सर्व करेंगे। उसके बाद नॉर्मल हो जाइए कि नॉर्मल रहना ही बेहतर, बहुत मुस्तहसन है। अच्छा, अब डालिए रौब, शुरू कीजिए। सुना है आप विश्वा भारती को नवाज रहे हैं। यहाँ भी एक से एक बड़ा आर्टिस्ट पड़ा है, हर किस्म का, और ये सब बारी बारी, फर्दन फर्दन और मजमूई तौर पर आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे। पहले आप अपने पॉलिटिकल ख़यालात से मतला कीजिए। रिएक्शनरी तो नहीं है ना, या महासभाई? आप चिले बनाते हैं? निर्मला ने पूछा। जी नहीं, कभी कभी बना लेता हूँ। गौतम, आपका तखल्लुस है? तिलत ने सवाल किया। जी नहीं, माँ बाप ने यही नाम रखा था तिलत बेगम। मैं फिर कहूँगा, आप अभी और पढ़िए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। आपके इल्म में अफसोसनाक कमी है। भैया साहब नहीं पहुँचे, कमाल ने कहा। उन्होंने फ़ोन किया था कि चाय यहीं पियेंगे। भैया साहब इस वक्त? तिलत ने घड़ी देखकर तुंदही से ऐलान किया। राइडिंग के लिए गए हुए हैं, अब स्विमिंग से वापस आते होंगे। मजमा अपनी जगह पर ज़रा नादिम हुआ। खुदा की पनाह, ये कौन साहब हैं? कोई फिल्म में स्टार हैं? अशोक कुमार वगैरह? गौतम ने सवाल किया। भैया साहब, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उनसे ज़रूर मिलना? कमाल बोला। ताल्लुक़दाराने अवध के मुतालिक मेरी मालूमात बहुत महदूद हैं। क्या आप सब यही राइडिंग और स्विमिंग वगैरह करते हैं? मैं दरअसल सारे मिडिल क्लास लोगों की तरह तबक़े उमरा पर आशिक हूँ। जंग से पहले विलायत किया था अपने बाबा के हमरा, तो ब्रिटिश लॉर्डों को देखने की तमन्ना में घूमा घूमा फिरता था। जहाँ दूर से कोई लॉर्ड नज़र आया और मैं लपका उसकी तरफ। बाद में मालूम हुआ कि वहाँ के अंडरटेकर भी वही लॉर्डों वाला लिबास पहनते हैं। हम लोग भी अंडरटेकर्स हैं, कमाल ने कहा, और माजी की कब्रों के मुजावर, हरिशंकर ने इजाफा किया। लेकिन तुम्हें हमको पसंद करना पड़ेगा, कमाल ने दोबारा कहा, क्योंकि हम लोग अपनी दिलकशी के सहारे ही पर जिंदा हैं। मैं तुमको ज़रूर पसंद करूंगा, मेरे दिल में बड़ी उसत है, उसने बड़ी तमकनत से जवाब दिया।